أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہمارا جو مظاہرے پڑھ رہے ہیں اللہ۔ اس کا ہم لوگ لاسٹ لیول پر آ چکے ہیں۔ آج ہم لینے والے ہیں مجہول، مضارع مجہول۔ بولے مضارع مجہول عطیات کی کرتے بولے نا ایکسپلینیشن۔ تو ایک ایکسپلینیشن کرے نا۔ اچھا نہیں سر کریں گے بولے تھے۔ اچھا کریں گے۔ تو اتحیات کے معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے کوئی جانتے ہیں اتحیات کے معنی؟ ہلو، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں ہاں، تمام تعریفیں، تمام اصل میں اگر اس کا ڈکشنری سے لنگوسٹک معنی اس کے کیا ہے تو یہ معنی ہوتے ہیں گریٹنگس۔ جیسے ہم کسی سے ملے تو کیسا گریٹنگ کرتے ہیں، آپ کیسے ہیں، کیا ہے، آپ اچھے ہوں گے، جیسا ہم بولتے ہیں نا السلام علیکم یا آداب، یہ جو بھی کرتے ہیں اس کو گریٹنگ کہتے ہیں۔ گریٹنگ کا مطلب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے متعلق میں سب سے اچھی باتیں لایا ہوں، رائٹ؟ یس۔ اس کا اگر ہم نے لنگوسٹک معنی دیکھیں، کنسپچل معنی اتحیات کیا ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم پیش ہو رہے ہیں تو تمام تعریفیں اور تمام اس کے اندر کی کیا کہیں گے آل پائس تھنگس، جیسا کہ بولیں گے تمام اچھی باتیں، یہ سمجھ کے چلو آل گڈ گریٹنگس فار یو للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ للہ آ رہا ہے نا اس کے بعد اتحیات للہ، اللہ کے لیے تمام اچھائیاں، تمام تعریفیں، تمام پاکی، تمام چیزیں جو بھی آگے اس میں ایک بہت بڑا سرکل ہے، ٹھیک ہے؟ آل گریٹنگس فار یو، سمجھے؟ جی۔ اب والصلوات وطیبات، سلامتی، والصلوات کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی، اور طیب کا مطلب کیا ہے؟ پاک۔ تو سٹارٹ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کسی کے سامنے اگر حاضر ہو رہے، پیش ہو رہے تو کیا بولیں گے؟ میں آپ کے لیے سب سے اچھی گریڈنگ لایا ہوں، آپ کے لیے سب سے اچھی باتیں لایا ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے ٹائم پر۔ جیسے ایک بڑی پاور کے سامنے اگر آپ جاتے ہیں تو جس طرح سے آپ ان کے گنگان کریں گے، ان کے بارے میں اچھی باتیں بتائیں گے، تو وہ اتحیات للہ والصلوات وطیبات۔ طیب کا مطلب کیا ہے؟ پاک، سلامتی اور پاکی۔ اب اس کے بعد میں کیا ہو رہا ہے؟ السلام علیکہ، یہ تو معلوم ہے، السلام کا مطلب معلوم ہے؟ اور سلام کے سلامتی، اور کس کے لیے کریں؟ علیکہ، حضور کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو حضور جب دیکھو، یہ اس کے لیے جو ہے نا، یہ معراج کا واقعہ ہے۔ حضور جب داخل ہوئے
اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کلام ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم. ٹھیک، تو آپ جب حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جب پورے تعریف ہے کہ السلام علیکم کس نے کہا، کس کو کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوتے کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا نبی، اے نبی آپ پہ سلامتی ہو. سمجھے؟ جی جی ریسیپروکیشن ہے وہ، جب جا کے ہم نے بولے التحیات للہ والصلوات وطیبات، ٹھیک ہے، جی تو ریسیپروکیشن میں جواب آ رہا ہے. جیسے ہم نے کس کو آداب بولے تو واپسی میں آ رہا ہے یہ السلام علیکم یا نبیو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ کے اوپر رحمت. تو اس کے اندر نبی نے کیا کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے السلام علینا، نہ بولے تو ہم ہم پر، سب پہ. ہم سب پر، خالی خود کے اوپر لے کے نہیں، خاموش ہو گئے. السلام علینا، ٹھیک ہے، ہم سب پر جی ہم سب پہ سلامتی ہو، رحمت ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تمام عابد بندے، جو بھی بندے عبادت کرتے ہیں ان پر بھی. اس کے بعد درود شریف ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے. جی تو ہم چلیں گے اپنے ٹاپک پہ، پھر اس کے بعد دیکھیں گے. تو ہم پڑھتے آئے تھے، اب ہمارا رہ گیا تھا ماضی میں ہم نے پیسو وائس پڑھے تھے، یاد ہے کیا آپ کو؟ ہو مجہول، مجہول. مجہول کا مطلب کیا ہے، کوئی بتائیں گے مجھے؟ جس کے اندر آبجیکٹ جو ہے مس کرتے ضرورت نہیں رہتی. نہیں نہیں، مجہول کا مطلب ہے آئی ڈونٹ نو. آئی ڈونٹ نو واٹ، آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا ڈوئر. اچھا اچھا مجہول کا مطلب ہے کرنے والے کی وضاحت نہیں ہو رہی، کرنے والے کو کلیئرٹی نہیں دی جاتی، تو اس کو مجہول کہتے ہیں. مجہول کا مطلب انگلش میں سمپل لکھ لو آپ، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا سبجیکٹ. سبجیکٹ کیا ہے؟ ڈوئر. جیسا میں نے کہا فعل، بولو. فعل، اب فعل یعنی اس نے کیا، اس نے کیا کیا بھائی؟ جو بھی کیا ایکشن آئے گا نا، جیسا ہم نے کہا ہے ضربا حامد، بولو. ضربہ حمد، ضربا حامد، اور کیا لکھیں گے اس کے بعد میں؟ خالدن، بولو. خالدن. تو کیا کیا چیز آ گئی اس میں؟ حامد نے خالد کو مارا. یس. اب اسی کو پکڑ کے رکھو بھائی. ہاں، جی تو ہم نے کہا اور جس کو بھی کچھ بھی نہیں سمجھا سب پوچھو، کیونکہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک. حامد ایک ہو گیا. اب اردو میں طریقہ ہے اس کو لے لگا، کیونکہ یہ رفع ہے. جی ٹھیک ہے؟ حامد نے کیا کرا بھائی؟ مارا. یہ مارنا کام ہے. حامد یہ کرنے والا ہے اور مارنا کام ہے. اور مار کون کھایا؟ خالد. خالد. ٹھیک ہے ماجد. جی تو ایکشن شروع کہاں سے ہو رہا؟ حامد سے. مارنے کا کام ہو رہا، کس پہ جا رہا ہے یہ؟ زید پہ، خلق. خالد پہ، جو بھی ہے. تو یہ 1 ہو گیا، یہ 2 ہو گیا. تو اس میں ہم کو دونوں معلوم ہے، مارنے والا بھی معلوم ہے. اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ ڈوئر. اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ آبجیکٹ. مارنے والا کون ہے؟ حامد ہے. حامد. مار کھانے والا کون ہے؟ خالد ہے. ٹھیک ہے. او تو عام طور پر جب انگلش میں جملہ بنایا جاتا ہے، باقی زبانوں میں بنایا جاتا ہے، تو ہم اس طرح بولتے ہیں خالد کو مارا گیا، بولو. خالد کو مارا گیا. اب کس کے ذریعے مارا گیا بھائی؟ حامد کے ذریعے. حامد کے ذریعے. لیکن اگر ایک بہت بڑا کراؤڈ ہے، ہاں، موب لنچنگ والا کراؤڈ، ہاں اور یہ خالد یہاں، اب مار گئے تو مختلف لوگ آئے جو پیسہ لینے آ رہے ہیں. صحیح.
तो मारने वाला मालूम है क्या कौन है? नहीं। तो क्या बोलेंगे हम, खालिद को पीटा गया, बस खत्म। अच्छा अच्छा अच्छा, हो वो पिटा गया, खालिद पिटा गया, तो किसने मारा हो? कोई वही नहीं है। आई डोंट नो। जब ये आई डोंट नो आएगा माजिद, करने वाला जी, कार्यक्रम का कल्प्रिट कौन है, मारने वाला कौन है, शरारती कौन है, दिख रही है ना। सही है सही है। जब मारने वाले का जिक्र नहीं होता, सिर्फ खालिद के जिस मार खाने वाले का जिक्र होता है, ऐसे एक्शन को मजहूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसा एक्शन को मजहूल बोलते मजहूल का कोई और मतलब नहीं, आई डोंट नो का मतलब। हैं। ओके, मजहूल का मतलब क्या है? आई डोंट नो। मैं नहीं जानता करने वाले के बारे में, बोलो। मैं नहीं जानता करने वाले के बारे में। तो उसका जिक्र नहीं करते ना। सही है। ठीक है, यहां तक समझा। और एक बिल्कुल। एग्जांपल देता फिर आपको और अच्छा समझेगा। ये आपका मकान है, ठीक है। जी। ठीक है, यहाँ पे आपने इसके ऊपर जो है ना लॉक लगा के चले गए गए। हाउ। अब यहां पर चोर आया और उन्हें अपने आंखों पे पट्टी लगा के आया। देखा क्या तुमको? नहीं। उसने घर का कुफल तोड़ा, सामान उठाकर लेके चला गया, पूरा सामान की इतनी बड़ी गठोड़ी लेके चला गया। अब आप क्या बोलेंगे, इस वाक्य को कैसा जिक्र करेंगे? चोर ने चोरी किया बोलेंगे या चोरी हो गई बोलेंगे? चोरी हो गई। ये ये जबान है, जंगली जबान है। चोरी चोर ने की गई। चोरी की। चोरी की गई। चोरी करता, चोरी अच्छा इंसान करता क्या? बोलो। बिल्कुल। चोरी की गई, ऐसे कहेंगे ना। हाँ, सादी जबान में हम बोलते चोरी हो गई, बोलो। सादी जबान में बोलते चोरी हो गई। हाँ, लेकिन कौन चोर है बताएंगे क्या हो? नहीं। चोर मालूम हो तो फिर तुम और चोर जो है ना पार्टनर हो जाते हो। सही है। जो छुपकर करता है काम, वो चोरी है। सही है। अगर जानबूझकर कर रहा, तुम्हारे सामने ये उठा के ले जा रहा और तुम यहां से देख रहे हो उसको, तो इसका मतलब होता है कि तुम भी चोरी में शामिल हो। सही है। तो यहाँ पे क्या है? चोरी की गई, क्या बोलेंगे? चोरी की गई। तो किसी के तो भी जरिए, मेरे को मालूम नहीं किसने किया, चोरी की की गई। गई। इसी तरह एक आदमी को किसी ने कत्ल कर दिया, तो हमारी सादी जुबान में उर्दू बोलते हैं कत्ल हुआ। कत्ल किया गया। हाँ, कत्ल हुआ। तो हमने बोलना कत्ल किया गया किसी शख्स का, भाई किसने किया मालूम नहीं, रात के अंधेरे में कर दिया। तो किस चीज का पता लग रहा नहीं, करने वाले का पता नहीं लग रहा। किसका नहीं लग रहा? ठीक है ठीक है, डुअर का पता नहीं लग रहा। हाँ, तो डूअर का जब पता नहीं रहता है, तो उर्दू में मजहूल का मतलब क्या है मालूम क्या? करने वाले के बारे में हम लोग क्या नहीं है, अवेयर अवेयर नहीं है। नहीं। नो हु इज ही, इसको मजहूल बोलते हैं। मजहूल यानी कि कम दिमाग वाला, कम समझ वाला, जिसको मालूमात नहीं है। बात गई गई के दिमाग में, यस यस। है ना? अब तुम जो क्लास में देख रहे हो, उसको हम कहते हैं क्लास को साफ किया गया, झाड़ के वड़ के सब साफ किया गया। तो अब मुझे बताओ, साफ करने वाले से या वाली से तुम्हारा क्या कोई ताल्लुक है? नहीं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए? नहीं। तो आप क्या बोलेंगे? क्लास को साफ किया जाता, प्रेजेंट में बोलेंगे, पास्ट में बोलेंगे क्लास को साफ किया गया। सही। कल क्लास को साफ किया गया, और बोलेंगे क्लास को रोज साफ किया जाता। हाँ, ये मस्त है। तो यू डोंट नो हु डज इट। बराबर है। एक नंबर दो, अगर आपको मालूम है, इसकी बोलने की जरूरत नहीं है, तो भी आप ऐसा जुमला बोलेंगे, अरबी पढ़ाई जाती नांदेड़ से, बोलो। अरबी पढ़ाई जाती ना। अरबी पढ़ाई जाती नांदेड़ से। तो बोलने की जरूरत नहीं, कौन पढ़ाता? कि तो सबको मालूम है। सही है। समझ में आया? सही है। मुसलमानों के जरिए रोजा रखा जाता। हाँ राइट।
है ना, रोका। अब मुसलमान बोलने की जरूरत है क्या? सही है। बोलो, रोजा रखा जाता रमजान में, किसके जरिए? मुसलमानों से। हाँ, तो फिर वो जो छुपाया जाता क्या होता है इसमें मालूम क्या? द डूअर इज हिडन, बोलो। When doer is hidden. हाँ, जानबूझ के नहीं छुपाते इसको, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। सही है। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दिया था कि आप स्कूल के स्टूडेंट हो और आपका क्लास खत्म होता है, स्कूल खत्म होता है 5 बजे, राइट? उसके बाद में 2 घंटे आप क्लास को जाते, राइट? तो घर को आए तक 9 बज जाते। कितने बजते? 9 बजे। 9 बजने के बाद आप घर में घुसते हैं और सीधा घुसते घर में, और घर में यहाँ पे जाके देखते तो एक किचन है, और किचन में यहाँ पे उसका टेबल है, और यहाँ पे आपकी अम्मी खड़ रहे हैं, रोटियां बना रही, ठीक है? ओ, तो बच्चा जाके हुक्म करता, अम्मी खाने को जाओ, बहुत भूख लगी। अच्छा, अम्मी क्या कर रहे हैं? खाना बना रहे हैं। अब अम्मी बोलेगी कि मैं बना रही हूँ, तो सामने दिख रहा ना, मैं बोलने की वहां जरूरत नहीं है, तो क्या बोलेंगे खाना अम्मी? खाना बन रहा। बनाया जा रहा है, वो ओ, जल्दी खत्म। खाना बनाया जा रहा। बनाया जा रहा, मेरे जरिए बोलने का था क्या? वो नहीं। तो दिख रहा है, ऑब्वियस है, खाना बनाया जा रहा, बेटे बैठ, मैं तेरे को गरम खिला। सही है। तो अभी अगर आपसे पूछेंगे कोई कि रूबी एकेडमी में क्या हो रहा है, तो आप बोलो अंग्रेजी पढ़ा या अरबी पढ़ाई जा रही पढ़ाई है। जारी, बराबर। आप समझ में आया? राइट। तो पढ़ाई जा रही है बोले तो ये हो गया मुजारे, और कल पढ़ाई गई बोले तो हो गया माजी में हो गया। मुजारे में पढ़ाई जा रही है या पढ़ाई जाती या पढ़ाई जाएगी, ठीक है? समझ में आ गया? यस। तो आपके दिमाग में ये बात पक्की कर लो, ये टर्मिनोलॉजी याद रखो। क्या क्या याद रखना है इसमें? 2-3 चीजें याद टर्मिनोलॉजी। रखो। हाँ, टर्मिनोलॉजी का मतलब इस्तेलाह, इस्तेलाह यानी कंसेप्ट, सही। ठीक है? ये कंसेप्ट याद रखो कि मजहूल जो है इंसानों की जबान में 25 to 35% आना लाजमी, चाहे वो एजुकेटेड हो या इलिटरेट। सही। ये यानी कि इंसान की फितरत है, ये दोनों बोलते हैं। सही है, पैसिव में। और साइंस के तो तमाम डेफिनेशन पैसिव में रहते। जी जी। तो क्या बोलते सब हम केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे? एक बीकर लिया जाता, हाँ। उसमें पानी उंडेला जाता, फिर उसे गर्म किया जाता, फिर उसमें शक्कर डाली जाती, फिर उबाला जाता, फिर पत्ती डाली जाती, फिर उबाला जाता, फिर दूध मिक्स किया जाता, फिर छान के पिया जाता। कौन पी रहा किधर मालूम है क्या? नहीं। तो दुनिया का कोई भी प्रोसीजर, कोई भी करने का तरीका कैसे में बता? सही। अच्छा, अब आपको 2 चीज मालूम है, एक कैट मालूम है और रैट मालूम है। ओ। तो हम जब भी रैट के बारे में बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? चूहे को खाया जाता है भाई, बिल्ली का नाम लेते नहीं, अब तो सारी दुनिया का यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्ली खाती। बराबर। बोलो, चूहे को खाया जाता। चूहे को खाया खाया जाता, जाता। ओके दैट्स ऑल। इसको पैसिव बोलेंगे। तो कैट का जिक्र जब नहीं करेंगे, कैट इज नॉट टॉक्ड अबाउट, कैट इज नॉट रेफर्ड, जब ये नहीं दिया जाता उसको मजहूल बोलते हैं। यस। आगे सबको समझ में? बिल्कुल। मजहूल, मजहूल एक वर्ड लिख लीजिए, मजहूल का मतलब है डूअर या फाइल, पता नहीं। मजहूल का मतलब है इंग्लिश में डूअर या सब्जेक्ट, सेंटेंस का डूअर, सब्जेक्ट इज नॉट नोन। सब्जेक्ट अननोन, हो। या सब्जेक्ट को छुपा दिया जाता है, हिडन, सब्जेक्ट। बोलने की जरूरत महसूस नहीं करते गए, ठीक है?
आया क्या समझे सबको? यस यस। अच्छा, नॉर्मल जुमले में क्या क्या होता है जरा मुझे बताइए। एक्शन वर्ब के जुमले में तीन चीजें होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट से काम ऑब्जेक्ट पे होना तो वर्ब के जरिए होगा ना भाई। ओ जी सर। सब्जेक्ट का वर्ब का मतलब क्या है? काम। सब्जेक्ट ने काम किया, काम को महसूस किया ऑब्जेक्ट ने। तो ये तीन चीजें जब होती है तो एक सेंटेंस बनता है। ठीक है माजिद साहब? जी जी। तो अब इसको अगर मुझे मजहूल बनाने का है तो सिर्फ दो चीजें हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे हम। ऑब्जेक्ट को पहले बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को बोलेंगे किया गया या किया जाता, एक्शन के साथ बोलेंगे। सब्जेक्ट को बंद कर दें। आया समझ में? ओ तो अब क्या होगा? अब जब इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा से हम अभी समझो हमने जैद का जिक्र करें, जैदन बोले। क्यों भाई दन क्यों बोले? जैद को बोलो मुझे। जैद मार खाए वाला है। हाँ माजिद साहब, जैद जैद बात के है। ऊपर काम हुआ है। हाँ, जब ये तीन आएंगे तो जैद इस तरह से आएगा। ठीक है? जी। तो अब क्या बोलेंगे हम? मारा गया वो, बोलो। मारा गया मारा वो। गया वो। मारा गया कौन भाई? जैद। जैद अब मारा जैद गया। ऑब्जेक्ट, अब जैद ऑब्जेक्ट नहीं है माजिद। जब जैद, जब ये मजहूल में आएगा तो ये याद रखना है, ये जैदुन हो जाएगा वापस। अच्छा अच्छा अच्छा। इसको बोलते हैं डेप्यूटी सब्जेक्ट। अब इन्हें सब्जेक्ट बन गया। मारा गया कौन भाई? जैद। तो अब क्या क्या याद रखेंगे? आप पहली चीज क्या याद रखेंगे? मजहूल के अंदर सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता, इसलिए मजहूल कहते हैं। पक्की बात समझ जाएंगे? ओ अच्छा, माजी का जो वर्ब लेते हैं हम, माजी के वर्ब को क्या करे थे हमने? फा। उला। ये शाबाश, ये फा आला था अपना। तो इसको अगर मुजारे बनाना है, सॉरी, इसको अगर मजहूल बनाना है तो फा कलमे को फू करते हैं, आइन कलमे को जेर देते हैं। लाम जैसा कोई सा। शाम को तो माजी है ना, इसका सिग्नल नहीं है तो छोड़ इनसे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? जी। अच्छा, मारने को क्या कहते हैं भाई, बोलो जरबा। जी। द रबा। र बा, दरबा। ठीक है? हम्म। ठीक है क्या? अब डॉट्स रहेगा ना, दरबा। ठीक है? और क्या बोलेंगे माशल? जुरीबा। दरबा। जरबा। ठीक है? तो यहाँ पे अपन सेंटेंस, दो किस्म के सेंटेंस लिखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। जो मैंने बैकग्राउंड लिया ना इसलिए लिया क्योंकि आप भूल गए, आपने पैसिव पढ़ के 1 महीना हो गया। सही। तो एक्टिव वॉइस के अंदर आपको तीन चीजें मिलना चाहिए। क्या क्या? सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब, ऑब्जेक्ट। और अरबी का जुमला कहां से शुरू होता है? वर्ब से वर्ब शुरू से। होता है। वर्ब से। ये हो गया अपना दरबा। ठीक है? अभी एक्टिव वॉइस लिख रहे हो। हाँ, दरबा। करने वाला कौन है? हामिदन। हामिदुन। हामिदुन, हाँ बराबर। हाँ, करने वाला रफा हालत में है। राइट। राइट? ये सेगा पहला है। ये आउटसाइड डोर आ गया, डोर बाहर आ गया। तो हामिद ने मारा, किसको मारा भाई? जैद को दन। मारा। हाँ, तो ये जैद दन हो गया। तो यहां पर दो सिग्नल मिल रहे हैं हमको। जैद के ऊपर नसब है तो ये है ऑब्जेक्ट और ये है सब्जेक्ट। ठीक है? तो क्या क्या मिला अपने को? ये वर्ड मिला, माजी का फेल है। ठीक है? फेल माजी। जी। अच्छा, ये कौन है? फाइल। डूअर है, सब्जेक्ट। फाइल है, ये सब्जेक्ट है। मफूल। फिर मफूल। सब्जेक्ट क्या होता है? फा, एल। फाइलुन। गड़बड़ नहीं करो बेटे, गड़बड़ नहीं करो, सब कुछ सीखना है। फाइलुन यहाँ तक आ गया। अब जिस पर काम हो उसको क्या बोलेंगे अपन? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ये क्या होगा?
مفعول 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 ٹھیک ہے بیٹے جی یہ فعل فاعل مفعول یہ اپنا سادہ سا جملہ ہے ٹھیک ہے سب کو سمجھ میں آئے جی اب اپنے کو اس کو کیا بنانا ہے پیسو مجہول بنانا تو اپنے کو یہ سانچے پہ لانا پڑے گا سانچہ کیا ہے لکھ دیتا میں یہاں پہ فا کلمے پر پیش دو عین کلمے پہ زیر دو لام کلمے پہ زبر رکھو تو فعل فا کلمے کا مطلب یہ دا ہے یہ را ہے اور یہ با ہے تو یہاں پہ زو ریبا ہے ریبا زریبا اب دیکھو میں لکھ رہا ہوں تو یہ ہو گیا زو ری با تو اس کا مطلب ہے مارا کیا ہے مارا 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 حامد نے کس کو مارا زید کو جی ٹھیک ہے مارنے والا کو جو بولو سمجھے کو حامد ہے اور مارنے کھانے والا کو جو بولو زید تو ہم کو اگر مجہول بنانا ہے تو کس کو غائب کر دینا پڑے گا حامد کو یہ حامد چلے گا اب انہیں تو یہاں پہ مفعول کی شکل میں ہے نا لیکن اب جو ہم کو لانا ہے وہ ڈیپیوٹی سبجیکٹ بنا کے لانا ہے سبجیکٹ کی جگہ رکھنا ہے تو یہ سبجیکٹ نہیں ہے اس کو بولتے ہیں نائب الفاعل کون سا نائب نائب مانو نائب تحصیل انگلش میں بولتے ہیں ڈیپیوٹی سبجیکٹ اب ڈیپیوٹی سبجیکٹ بنانے کے لیے زید کی اعرابی شکل بدلنا پڑے گی زید جو ہے نصب میں تھا تو اس کو اگر سبجیکٹ بنانا ہے تو اس کو رفع حالت میں لانا پڑے گا صحیح ہے کیا بن گیا یہ زیدن تھا نا پہلے یہ او ایسا تو اس میں سے فرق کو پہچانیے آپ کیا ہو تو خالی اتنا ہی جملہ بنے گا بولو زوریبا زیدن ضربا زیدن مارا گیا زید ختم مارا گیا زید جی پورا السلام سمجھ میں آ گیا علیکم دریبا زیدن ہو جائے گا نا سر اب یہ کیا لکھا ہوا بیٹے پڑھ زیدن لکھا ہے نہیں سر لیکن آپ نے زیدن بول دیا اس لیے بولی تو یہاں پہ زیدن کی جگہ پہ زیدن کی جگہ پہ زیدن ہوا اسی کو بولیں گے نائب الفاعل جی تو پورے مجہول میں یاد رکھنے کی چیزیں کیا کیا ہے خلاصہ کرو ماجد مجھ سے مجہول میں سب سے پہلے آپ کو اس کی ڈیفینیشن یاد رکھنا کیا یاد رکھنا بولو ڈیفینیشن یاد رہنا تو مجہول بولتے ہی آپ کیا بولیں گے اس میں ڈوور کو ہمارے کو ہائڈ کر فاعل فائل کو ہم کو غائب کر دینا پڑے گا ہاں سبجیکٹ کو ہائڈ کرنا پڑے گا چھپانا نکال دینا اور رکو 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 مفعول مفعول کو کیا کرنا پڑے گا اس کو بدلنا پڑے گا اور اس کو رفع حالت میں لکھنا پڑے گا کیسی حالت میں لکھنا پڑے گا الٹا ہو جاتا رفع حالت میں لکھنا پڑے گا ایک پیج یا دو پیج سے لکھنا پڑے گا سمجھ میں آ گیا جی 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 کیا بن جائے گا مفعول کیا بن جائے گا نائب الفاعل نائب الفاعل رائٹ اتنا ہی یاد رکھنے کا سبجیکٹ کو ہکال دینا اور مفعول میں سے سبجیکٹ پیدا کرنا جس کو رفع حالت بنانا بس اتنا ہی کام ہے اور آپ کے فعل کو اور آپ کا تیسری چیز اور آپ کا فعل جو ہے فا کلمے پر پیش دینا عین کلمے پہ زیر دینا لام کلمے کیسے کیسا رکھنا یس سر ٹھیک ہے بھائی سب کو سمجھ آ دھیرے دھیرے تین چیزیں یاد رکھنا ہے کیا ہے بھائی جب لکھو فاعل جب چھپا دیا جاتا ذکر نہیں کیا جاتا اس کو ہم مجہول کہتے ہیں اور دوسری چیز آپ کو کنفرم کرنے کے لیے پتہ لگتی ہے کہ جو اوریجنل مفعول تھا وہ اوریجنل مفعول کو نائب الفاعل بنا دیا جاتا اور صیغے کو فعیلہ بنا دیا جاتا بس سمجھ میں تین پوائنٹ یاد رہیں گے بولو مجھے کون بولیں گے
फाइल को छुपाया जाता, मफूल को रफा हालत में रफा हालत में लाके और फुइला कर देने का। बस बस, इससे ज्यादा एक नुक्ता भी याद रखने की जरूरत नहीं। अब अगर हमने तीन लिए, रे लिए और बा लिए, ठीक है जी जी सर। अब इसका मतलब है शरीबा, शरीबा। शरीबा। अब करने वाला पीने वाला कौन है? दो पेश जैदुन। वाला है जैदुन। जैदुन। जैदुन पीने वाला है, क्या है भाई वो? माँ। माँ। अब जरा अब अभी जरा रुकेंगे, अब आप बीच बोलेंगे तो जो नई सीख है वो गड़बड़ा जाएंगे ना। हाँ, तो ये तीन चीजें हैं, बस तीन चीजों का नाम आ जाओ। ये है काम, बोलो। काम, काम वर्ब। काम यानी वर्ब, वर्ब यानी फियल, फियल। राइट? जी सर। ठीक है, और ये कौन है? फाइल, फाइल। फियलुन, फाइलुन। और ये कौन है भाई? फाइलन। मफऊलुन। मफऊलुन। आया समझ में आपको? जी इसको सर। बोलते हैं हम लोग वर्ब, इसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और इसको एंड बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब रुक जाओ, सब रुक जाओ, आराम से आराम से। अब हमको बनाना है मजहूल, तो इसमें करने वाला कौन है बच्चों? बोलो मेरे को। जैदुन। काम करने वाला फाइल कौन है? फाइल जैदुन है। जैद। जैदुन। है सर। जैद को हटाल दो। जी सर। अब दो रह गए अपने पास, तो अब हमको बनाना है, तो ये मजहूल होने के लिए सबसे पहले हकालना किसको? करने वाला हकाल दिए गया, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को हकाल दी। अब रह गया अपने पास दो ही चीज है, इसको रीअरेंज जी। करने का। अब इसका जो वर्ब है उसको क्या करना पड़ेगा? पेस्ट को पेस्ट लगाना पेस्ट। पड़ेगा। कोयला। शुरीबा। क्या करना? इसको क्या बनाना? फार्मूला से क्या करना अपने को? कोयला बनाना है। हाँ शुरीबा। पा कलमे को पेश। तो ये फार्मूले पे आ जाना तो ला। तो बना लेंगे अपन। शुरीबा। शुरीबा। वेरी गुड, ये हो गया शू शुरीबा। री बा। पिया गया, क्या पिया गया भाई? पानी। माँ। पानी। हाँ, तो माँ उन, उन। पिया गया। माँ अन था, माँ उन कर दी। क्यों करे भाई? ये मफूल को बदल कर डेफिनेटली सब्जेक्ट यानी कि नायबुल फाइल बनाना है। 21 काम करना मैंने बता दिया। कर लिया बेटा? यस। अच्छा, अभी आप मुझे बताएंगे, मैंने करा ज़करा से बनेंगे, ठीक है? जी सर। जिक्र, रुको 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 रुको, वो कूद लेकर वो जो बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं आता उनके लेकर, हाँ, जरा गड़बड़ ना करो, उजलत करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बात इतनी मामूली है, लेकिन ये मामूली बात नहीं सीखे तो 30% आयतें बंद हो जाती है, ठीक है? 30%। तो हम यहां बनाने चले हैं, पहला लिखेंगे जिक्र किया, हामिद ने जैद का। हाँ, जरा बनाइए, अरबी बनाइए। अरबी बनाओ ना, जो नहीं आता। वर्ब ले आओ ना, इधर रखो। ज़िक्रा हामिदुन ज़ैदन। ज़करा हामिदुन ज़ैदन। जिक्र। ये हो गया ज़करा। हाँ, ज़करा हामिदुन। हामिदुन। ऑन अब ज़ैदन। किसका भाई? ज़ैदन। वेरी गुड, शाबाश। ज़ैदन। दन।
ठीक है बेटा, सबको समझ में आया? जी तो जी सर। अब पहली स्टेप क्या करनी है, अगर हमें इसको मजहूल बनाना, तो मजहूल बोलते किसको, जिसका फाइल भगा देना, छुपा देना, हटा देना। तो इसका फाइल कौन है? हामिदुन। तो इसको हटा दो, इसको। ये जा रहे भाई। अब क्या बच गया अपने पास? जकरा जैदन बच गया। ज़करा ज़ैदन बचा। नहीं 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 नहीं, अभी अपने को जो है पहले इसको करना पड़ेगा फूइला। फुइला ज़ुकिरा जुकीरा। यहाँ क्या करना पड़ेगा बोलो मेरे को? ज़ैदुन। तो जिक्र किया गया जैद का। जिक्र किया गया ज़ैद का। अब बोलो, कोई मुश्किल है? कुछ नहीं। नहीं अब सर। आप बताइए, अल्लाह ने तख्लीक की इंसान की। चलो बनाओ, अरबी में बोलो। तख्लीक को क्या बोलेंगे? खलक अल्लाहु खलक अल्लाहु इंसाना। खलकल इंसान। इंसान खलकल्लाहु इंसान। तो यहाँ पे फाइल कौन है भाई? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो अल्लाह को सेंटेंस को बाजू रख दो। अब बनाओ। खलका को क्या करेंगे? कोयला बनाओ। बोलो कानून। इंसानु यही से, सही से, कुछ भी नहीं है। सुलिखा इंसानुन। ठीक है, हाँ। आ गया सबको समझ में? यस। वापस आ गया आपका पूरा प्रोडक्ट। जो तुमने गवा दिए थे वापस मिला लिया तुमने, आज वापस लेके आ गए उसको। ठीक है। ओ हाँ, थोड़ा सा उसको अपन जाके और प्रैक्टिस करके वापस आएंगे। माजी में जाएंगे पहले। ठीक है। और वो देख लेंगे थोड़ा, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो दोनों में कैसे करना पड़ता है, उनको माजी और मुजारे सब कैसे करके सीखना पड़ता है। ठीक है बच्चों? तो अभी भी कुछ भी नहीं समझा तो कोई मुश्किल बात नहीं है, आप बोलेंगे तो मैं बताऊँ। पीछे जा रहे हैं हम लोग, राइट? देखो ये सेंटेंस था, फलफल लाहो। ठीक है। जी सर। तो यहां से निकाल देंगे तो बन जाएगा अपना। हाँ, मैं पहले पूरा ले लेता हूँ आपका पहले बात। एक बार डिटेल ले लेता हूँ आपको, तो फिर आपको वो मुश्किल नहीं रह जाएगी हमेशा के लिए। कैसा रहता, लोग कंफ्यूज रहते हैं। हाँ देखो, हमने शुरू करे थे पढ़ना, ऐसा पढ़े थे हमने। ये ओरिजिनल हमारा फॉर्म क्या है? फाला है। वाला। जी सर। एक्टिव वॉइस पे फाला होता है। हमने इसको बनाए थे फोइला। वेला। किया गया वो। बोलो। किया गया वो। क्या बात।
देखिए भाई, ये क्या है, पढ़ो। नसरा, वो नसरा, अब इसको कोयला बनाइए, नसीरा नुसीरा, उसीरा, दूसरे शरीबा को बनाइए कोयला, सुरीबा, सुरीबा, करूबा को बनाइए सुरीबा, सुरीबा। तो ये देखो, नसारा से नुसीरा बनाए हमने। नुसीरा का मतलब क्या है? मदद किया गया वो एक शख्स। जो इला बनाएगा वो एक शख्स, कोयला किया गया किया वो गया एक। वो। ठीक है, कोयला जरा उर्दू में नोट कर लीजिए एक बार, आपको अगर फोटो लेना तो लेके नहीं तो भूल गए आपसे। ठीक है, तो मजहूर के बारे में। हमने स्क्रीन शॉट नहीं ले लेने का। ठीक है बेटे, मैं आपको पूरा बताता हूँ, ले लीजिए। ये 1 2 3 लीजिए तो आपको समझ में आ जाए। हाँ, देखो, कोयला, कोयला, कोयलो, कोयलत, ऐसा उसकी पूरी गर्दान हुई है। ठीक है, मैं करके देता हूँ। तो कोई भी माजी का सीगा लेकर आप इस तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पर डिटेल इसके बारे में मालूमात है आपको, आप लिख लेंगे सकते हैं यहाँ पे। तो क्या क्या पढ़ना है हमको? फेल माजी, फेल मुजारे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मारूफ। मारूफ यानी कि जो एक्टिव वॉइस है उसको मारूफ कहते हैं, और जो पैसिव वॉइस है उसको क्या बोलते हैं? मजहूल। ठीक है भाई, सबको समझा क्या? नामा याद नहीं रहे तो भी चलेगा, अब एक्टिव और पैसिव बोले तो भी चलेगा। अच्छा, जरा बोर्ड पे क्या लिखा है, आपको कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बोलिए। माजिद पढ़ने आ रहा है आपको? हाँ बेहतरीन। हाँ, अब पैसिव वॉइस का पहला रूल क्या है? देखो माजिद, पैसिव वॉइस के अंदर जो आपको फेल होना, वो फेल मुताद्दी होना। मुताद्दी यानी कि ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट की डिमांड करता, बोलो, ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट की डिमांड डिमांड करता ऑब्जेक्ट डिमांड की करता, है, मांग ऑब्जेक्ट की करता। डिमांड अगर करता उसको, हाँ, उसको अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिए तो सेंटेंस के मायने नहीं होते। और इसके अपोजिट आएगा फेल लाजिम, ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। तो अच्छा, दो किस्म के एक्शन वर्ब होते हैं, मुताद्दी और लाजिम। याद आ गया आपको? हो तो मजहूल बनाने के लिए आपको फेल मुताद्दी जरूरी है। मैं फिर से थोड़ी वजाहत कर देता हूं। फेल लाजिम जो है ऐसा वर्ब होता है, जैसा हमने कहा जैद हंसा, बोलो। जैद हंसा। अब जैद हंसा बोलने के बाद में और एक लफ्ज लगाने की जरूरत नहीं है, इतने पे ही मालूमात पूरे हो जा रहे हैं। लेकिन हमने कहा जैद ने खाया, तो हम फेल को सवाल करते, क्या खाया, किसे खाया? तो हमें ये मालूम हुआ कि जैद ने एक सेब खाया, तो हम बोलेंगे अकला जैदुन तुफाहा, तुफाहन। समझेगा? तो एक जो जी वर्ड एक्स्ट्रा लगता है उसको बोलते हैं मफूल। मफूल मिल जाएगा तो पूरे जुमला हो जाता है। समझे? अब यहाँ पे जो वर्ड लिखे जहाबा, अब बोले जहाबा ये लाजिम है कि मुताद्दी है? जहाबा का मतलब वो गया। कौन सही। बोलेंगे? लाजिम मुताद्दी है, है, लाजिम अभी में सर। लाजिम है। तो वो गया बोलने के बाद और कोई बात बोलने की जरूरत नहीं है। सही। लेकिन नंबर 2 का वर्ब लिखे दरबा। दरबा का मतलब उसने मारा या पीटा, तो हमको एक टुकड़ा लगाना पड़ता है, किसे पीटा, राइट? यस। क्या किया उसने? तो उसने पीटा जैद को, तो जैद लगाए तक का दरबा के मायने नहीं होते। अब नीचे का बताओ भाई, अब्दुल्ला आप बताइए, शरीबा ये वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? ये मुताद्दी है कि लाजिम है? मुतादी है या लाजिम? बता दी। भाई उसको बोलने दो, भाई उसको सीखने दो।
मुताद्दी का मतलब है जी एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता तो ही मीनिंग होते हैं। अगर हमने कहा जैद ने पिया तो आपको मीनिंग कंप्लीट मिल रही नहीं, क्या पिया, किसे पिया। तो बराबर जैद ने पिया चाय, जब तक चाय का वर्ड ऐड नहीं करेंगे शरीबा के साथ आप, या पानी ऐड नहीं करेंगे या जूस ऐड नहीं करेंगे, तो शरीबा के मायने होते नहीं। तो जी शरीबा एक ऐसा फेल है, वर्ब है, जो एक एक्स्ट्रा वर्ड जिसको हम ग्रामर की जबान में ऑब्जेक्ट कहते हैं, मफूल कहते हैं, वो दिए तक उसके मायने कंप्लीट नहीं होते, जी इसलिए उसे कहेंगे मुताद्दी। मुतादी अब माजिद तुम बताओ, नसरा ये जो है ये फेल मुताद्दी है या लाजिम है? नहीं, मैं क्लियर नहीं है सर। मुतादी है सर। हाँ, तो मैं इससे तुमको पकड़ा कि तुमको ये बताओ नसरा बोलने के बाद क्या मतलब है नसरा के? मदद। मदद उसकी मदद किया गया वो नहीं यार, कुछ भी बोल उसने मदद किया। उसने मदद किया की हुआ नसरा हाँ, तो उसने मदद किया। उसने तो मदद माजिद तुमको पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही क्या? नहीं पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही हाँ, तो किसकी मदद किया जब तक का एक लफ्ज ऐड नहीं करते तो समझेंगे नहीं ना। बिल्कुल उसने मदद किया माजिद की, तो मदद पाने वाला कौन है? माजिद है। माजिद है तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल होता है। तो फिर तो माजिद पेन लेके लिखो, ऐसा वर्ड जो ऑब्जेक्ट मांगता है उसको बोलते हैं मुताद्दी, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ऐसा वर्ब ऐसा जो वर्ड ऑब्जेक्ट की डिमांड करता उसको ट्रांजिटिव कहते हैं, अरबी में उसको मुताद्दी कहते हैं। मुतादी जो ऑब्जेक्ट की डिमांड ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट की डिमांड करता है उसको मुतादी कहते हैं अब तुम वहां लिखो, ही हेल्प्ड, देखो ही हेल्प्ड ओके लिखा माजिद। हाँ हाँ हाँ। व्हाट और whom, दो सवाल करो उसको, क्या, किसे, ये सवाल करना हमेशा वर्ब। व्हाट डिड ही हेल्प, whom डिड ही हेल्प, तो What? मायने भी थे, ही हेल्प्ड, व्हाट के बजाय whom, ही हेल्प जैद, जैद डाले तक का मीनिंग ही नहीं होता ना। सही है, समझ में आया? सही अब सही। माजिद मुझे बताओ, ही स्लेप्ट, ये सेंटेंस के अंदर मीनिंग कंप्लीट होते कि नहीं होते? हो जाते। हो जाते। इसको ऑब्जेक्ट लगता क्या? नहीं नहीं। सर तो इसको बोलते हैं लाजिम, यानी इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव ओके। इंट्रांजिटिव ऐसा वर्ब होता है वो अपने बाद में एक एक्स्ट्रा वर्ड की डिमांड नहीं करता। सही है। गया दिमाग में? हाउ सर इसको ऐसा एलाबरेट करेंगे कि अ वर्ब विच डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मुतादी ट्रांजिटिव एंड विच डू नॉट डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाजिम इंट्रांजिटिव, ये बिल्कुल ट्रांजिटिव सही बोला अब्दुल्ला। आज क्या बात है भाई, होश में लिख रखी, जी सर बहुत अच्छा। अब यहाँ फिर चेक करेंगे भाई हम। हाँ, कौन से सवाल का जवाब देंगे? वो गया, जहाबा। अब ये सेंटेंस में वर्ड की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं है, तो इंट्रांजिटिव है, इसको लाजिम कहते हैं। लाजिम अब दरबा, उसने मारा, ये डिमांड कर रहा है कि नहीं बोलो? कर रहा है डिमांड कर रहा है ऑब्जेक्ट इसको मारा। हाँ, इसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। समझ में ट्रांजिटिव आ गया? मुतादी यस, मुतादी। तो दो चीजें, मजहूल बनाने के लिए आपको मुताद्दी होना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो मजहूल नहीं बना सकते। इंग्लिश में पैसिव वॉइस बना नहीं सकते। अगर हमने बोले कैट ने खाई, कैट एट, तो हमको मतलब ही नहीं होता। कैट एट अ माउस, माउस डालते ही वो जिंदा होगा सेंटेंस, माउस इज ईटन बाय कैट। बात समझ में आई सबको? जी सर यस। हाँ, तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट फेल मजहूल में, फेल मजहूल बनाते कैसा, जरा सब ये अगर स्लाइड लिख लेंगे तो आपको आ जाएगा। क्या लिखा है भाई इसमें? फेल मुताद्दी क्या है? हु वाज हेल्प, किसे मदद की गई, ये पूछना पड़ेगा ना। या बराबर। किससे मदद किया? तो हमने पहले लिए, पहला वर्ब लिए नसरा, क्या लिखे? न नसरा। हाँ, अब कंफर्मेटरी टेस्ट ले लो, नसरा को मुताद्दी है या लाजिम है? मुतादी है सर मुतादी है, बिल्कुल। मुताद्दी है। अब फिर हम मुताद बोलेंगे
हाँ चलो जुमला बना के आप लिख लो, आप उर्दू में लिखो, मराठी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, अरबी में लिखो। हामिद ने मदद करा जैद की, जैद होना जरूरी है इसमें। जी तो अब यहाँ याद रखो हमारा बनाने का तरीका, नसरा को क्या करना पड़ेगा, नुसीरा। नसीरा पहला हो गया, क्या करे अपन ने, पहली चीज क्या करे, नुसीरा करे। मदद करने वाला कौन था, हामिद, हामिद को निकाल दिए। जैद जो है मफूल में है तो उसको नसब में है तो उसको रफा दे दो, जैदुन नुसीरा जैदुन हो गया, बन गया। अब माजिद तुम बनाओ, समीआ, समीआ जैदुन अजाना, जैदुन अजाना। अजाना। तो अब अपना इसका बनेगा। जैद ने सुना, जैद गड़बड़ करेगा तो मैं मारूंगा वो। जैद ने सुना अजान, हाँ। कान में उसके अजान आई ना। जी सर हाँ तो पहला काम क्या करेंगे, समिया को बदलो सुमिया सुमी, सुमी आ सुमिया। गया। सुमिया अब जैद को हकाल दो, जैद को हकाल दो। जी अजाना को अजानुन कर दो। अजानुन करेंगे सुमिया तो अजानुन अजान सुनी गई, खत्म। बराबर है। अब आ जाओ, शरीबा हामिदुन शायअन, हामिद ने पिया चाय। अब उसको ये बना, वजह बना, शरीबा, शरीबा हामिद नहीं आएगा, शायउन हो जाएगा। आओ चाय होगा करेक्ट रिबा चायुन। हाँ समझा बात? जी जी जी। तो इंग्लिश में होगा, द टी वॉज ड्रंक। आओ इसके जरिए लेना देना नहीं है अपने को। सही तो है। यहाँ पे बनाने के स्टेप्स देखो। स्टेप 1 जरा ढूंढो, का है, नसरा है, जरा दिखिए राइट हैंड कॉर्नर पे देखो, नसरा, नसरा नसीरा नहीं, नसरा। नसरा दसरा हाँ। अब वहां पे चेक कर आवाज अपने क्लियर नहीं आ रही। रुको, मुंह बंद रखो जरा। नसरा बोलने के बाद चेक करो वो मुतादी है कि लाजिम है। मुतादी है मुतादी आती है, उसको बिल्कुल बता। तो फिर हमने पक्का कर लिया भाई ये इस्तेमाल करने के काबिल है, इसको मंजूर बना सकते। जी ठीक है, तो स्टेप 2 करेंगे। नसारा लेने के बाद में क्या क्या करना पड़ेगा अपने को, नुसीरा बा कलीमे पे पेश लगाना है, आइन कलीमे पे नुसीरा पेश देना है, लाम कलीमे पे जबर। तो स्टेप नुसीरा नंबर 5 पे आ जाओ, नुसीरा बन गया, नुसीरा बन गया नसारा से नुसीरा बन गया। तो नुसीरा को लेकर हम कुछ भी बना सकते हैं। अब नुसीरा हामिदुन, हामिदुन दिखते ही, सुनो मेरी बात, हामिदुन दो पेश वाला दिखते ही बोलेंगे मदद किया गया हामिद, मदद किया गया हमें नुसीरा हामिदुन। देखो यहाँ पे आ गया नुसीरा, सबको समझ में आ गया। जी तो नुसीरा के पीछे कौन छुपा हुआ है, हुआ छुपा हुआ है। सही। ठीक है, तो बोलेंगे हुआ नुसीरा, मदद किया गया उन्हें एक मर्द, बोलो मदद किया गया उन्हें। उन्हें एक मर्द। अब इसके दो का बना, नुसीरा का एक अलिफ लगा, नुसीरा। मुसीरा जमा सब लोग बना, हुम का बना नुसीरू, नुसीरू जीरो एक औरत का बनाओ नुसीरत नुसीरत, दो औरतों को बनाओ नुसीरत। नुसीरता नुसीरता 6 नंबर पे आ जाओ, जहाँ पे अपने पूरे औरतें बैठे हुए, नुसिरना। नुसीरना नुसिरना नुसीरना अब आगे का बड़ा आसान है, नुसिरता, नुसिरतुमा, नुसिरतुम नुसिरतुम नुसिरती नुसिरती नुसिरतुमा नुसिरतुमा नुसिरतुन्ना नुसिरतुन्ना नुसिरतु नुसिरना। इतना अच्छा आ गया। तो यहाँ पे दोनों भी चार्ट बनाए हैं, मुझे बोलना है इधर का एक पढ़ो, इधर का एक पढ़ो। राइट हैंड साइड पे एक्टिव है माजिद नसारा, पढ़े दिखे, देख रहे हैं। एक मिनट। इधर आ जाओ, नुसीरा मदद किया गया वो, नुसीरा नसरा का मतलब उसने मदद करा, नुसीरा का मतलब मदद किया गया वो। हाँ। नसरा दोनों ने मदद करे, नुसीरा मदद किए गए दोनों, नसरू उन सब ने मदद किए, नुसीरू वो सब मदद किए गए। देखो नसरत ने मदद मदद करी, की एक औरत, एक गायब औरत ने मदद करी। इधर आ जाओ, नुसीरत मदद की गई एक गायब औरत, नसरता दो औरतों ने मदद मदद करे, किया नुसीरता मदद किए गए दो औरतें, नसरना तमाम औरतों ने मदद किए,
नुसिरना मदद किए गए तमाम तमाम औरतें। औरतें। नसरता तू मदद किया, नुसिरता तू मदद किया गया तू। नसर तुमा तुम दोनों ने मदद करे, नुसिर तुमा मदद किए गए तुम तुम दोनों। दोनों। नसर तुम सब ने मदद करे, नुसिर तुम मदद किए गए तुम सब। सब। नसरती तू एक हाजिर औरत ने मदद करी, नुसिरती तू मदद की गई तू एक औरत। औरत। नसर तुम हाजिर दो औरतों ने मदद किए, नुसिर मदद किए गए तुम सब, तुम दो औरतें। दो औरतें। जी। नसर तुम सब हाजिर औरतों ने मदद करे, नुसिर मदद किए गए तुम सब हाजिर औरतें। जी सर। नसर तू मैंने मदद किया, नुसिर तू मदद किया गया मैं। मैं। नसर ना हमने मदद किए, नुसिर मदद किए किए गए गए हम। हम सब। हम सब। शाबाश। कोई पढ़ना चाहते? एक आदमी को चांस दूंगा, कोई एक पढ़ो, कोई भी एक। राइट। नसरा उसने मदद करा, नुसीरा मदद किया गया वो। नसरा वो दो मदद करे, नुसीरा वो दो मदद किए गए। नसरू उन सब लोगों ने मदद करे, नुसीरू वो मदद किए गए वो। नसरत मदद करी उसने। और नसरत हाँ। नुसी एक गायब औरत मदद करी, एक गायब औरत मदद करी। नुसीरत एक मदद गायब की औरत गई, मदद की गई, मदद मदद की गई एक गायब औरत। नसरता एक गलत पढ़ रहा तू। नसरता वो दो गायब औरतों दो ने गायब मदद औरतों की। ने मदद किए। नुसीरता फिर गलत पढ़ा तू। नुसीरता मदद किए गए मदद दो किए गायब गए दो औरतें। गायब औरतें। नसरना दो वो तमाम औरतें ने मदद करे। नुसिरना मदद मदद किए मदद की तमाम औरतों ने। मदद की गए तमाम औरतें। किए गए तमाम औरतें रही। हाँ। नसरता नसरता तू मदद तू एक हाजिर। ने मदद किया। उधर हो जाएगा नुसिरता तू मदद किया गया। मदद किया गया तू। हाँ। नसर तुम तुम दोनों दोनों तुम दोनों ने मदद की। नुसिर तुम दोनों मदद मदद तुम की दोनों की मदद की गई। मदद की मदद गई दोनों किए की गए दोनों। दोनों। हाँ। नसर तुमने मदद तुम सब लोगों ने मदद किए। नुसिर नुसिर तुम मदद किए गए तुम सब मर्द। नसरती तू एक औरत ने मदद करी। नुसिरती नुस है ना मदद नुसीरती अने नुसरत की। की गई तू एक औरत। नसर तुम मदद करे तुम दो औरतों ने, तुम दोनों औरतों ने मदद करे। नुसिर तुम मदद किए गए तुम दो औरतें। नसर तुन्ना तुम तमाम औरतों ने मदद किए। नुसिर तुन्ना तुम तमाम मदद की गई तुम मदद किए गए तुम तमाम औरतें। एक बार बोल के सीखना इंसान ने। नसर तू मैंने मदद करा। नुसिर तू मदद हुई मेरी। मदद किया गया मैं। अच्छा मदद किया गया मैं। नसरना हमने मदद करे। नुसिरना हमारी मदद की गई मदद हमारी। किए गए हम। मदद किए गए हम। इधर मदद से शुरू करना, इधर तू मैं इन्हें उन्हें सब बोलना। चलो एक कोई तो भी और पढ़ो, माजिद ने बहुत घान करके रखा। कोई पढ़ो। सर मैं पढ़ूं सर। बिस्मिल्लाह। नस्वरा। पढ़ो, आगे बढ़ो। बढ़ रहा हूँ सर। नसरा उसने मदद किया। नुसीरा मदद किया गया वो। शाबाश। नसरा उन दोनों ने मदद की। नुसीरा मदद किए गए वो दोनों। नसरू उन सब ने मदद की। नुसीरू
मदद किए गए वो सब। नसरत एक औरत गायब ने मदद किया, एक गायब औरत ने मदद किया। नुसीरत मदद की गई एक औरत। नसरता शाबाश। दो औरतों ने मदद की। नुसीरता मदद किए गए दो औरतें। नसरना तमाम औरतों ने तमाम गायब औरतों ने मदद की। नुसिरना मदद मदद किए गए सब गायब औरतें। नसरता तू एक तूने मर्द, हाँ, ने मदद किया। नुसिरता मदद किया गया एक मर्द। तो नसरतुमा तुम दो मर्दों ने मदद की। नुसिरतुमा मदद किए गए मदद तुम हाजिर तुम दो मर्द। नसर तुम एक मर्द ने, तुम तुम सब सब ने तुम सब मर्दों मदद ने मदद की। नुसिर तुम मदद किए गए तुम सब मर्द। नसरती तू एक औरत तो ने मदद की। नुसिरती की मदद मदद की गई तू एक औरत। नसर तुम दो औरतों ने मदद की। नुसिर मदद किए गए तुम दो औरतें। नसर तुम सब हाजिर औरतों ने मदद की। नुसिर मदद किए गए तुम सब औरतें। नसर मैंने मदद की। नुसिर मदद किया गया मैं। नसरना हम सब ने मदद की। नुसिरना मदद किए गए हम सब। वेरी एक्सलेंट, बहुत वेरी गुड। बेहतरीन पढ़ा तुमने, शानदार। ठीक है भाई। तो यस। ये आपके जज़ाकल्लाह। लिए दो चार्ट सेव कर लो, और कल जो है मुजारे शुरू कर रहे हैं हम लोग। मैंने समझा था आपको आता होगा, लेकिन आप लोगों को याद नहीं है। कोई बात नहीं, तो ये कम से कम तैयार करके आ जाओ कल आप। तो कल हम जी थोड़ा सर। इसको भी फॉलो अप लेंगे और मुजारे शुरू करेंगे। राइट, मुजारे भी इतना ही आसान है, बहुत आसान है, खाली समझना था आपको मजहूल किसे कहते हैं। तो ये एक स्लाइड ले लीजिए आप नसरा का, जी सर। सेव करेंगे आप। जी कर लिया सर। ये एक ले लो खलफा का। जी। ये लिखो एक रज़ाफ़ा का लो, रज़ाफ़ा रोजे का। और मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये कुरान में तकरीबन 25 से 30% आते हैं, आपको आना जरूरी है। जी हाँ, सर। नसबा ये भी लिख लो। जी सर। फिर उसके बाद आ गया सतहा, क्या मतलब? एक पर्टिकुलर लेवल पे लाओ, सतह। सब देते हैं। और ये है, कौन पढ़ेंगे वो, जरा पढ़ के सुनाओ। सर मैं पढ़ता हूँ। अफला बिस्मिल्लाहिर्रहमान अफला 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 यंजुरून यंजुरून इलल इबिल इलल कैफ इबिल खुलिकत कैफ व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत। एक पढ़ो। देखो यहाँ पे अफला है, तो क्या अफला नहीं देखते वो लोग, इला का मतलब की तरफ, इबली ज़रूर। इबली कैमल्स की तरफ। जी। कैमल्स का मतलब क्या है, ऊंटों की तरफ। हाँ, और क्या लिखा है चौकट में, जरा पढ़ो। खालका था पहले, क्या था माजिद? तो खलक खलका खुलिकत हो गया। खुलिकत। खालका, खुलिका क्या है? कैसे बनाए गए, हमने कैसी देखो कैसे तख्लीक किए गए। कैफा का मतलब कैसे। क्या वो लोग गौर नहीं करते, क्या लोग वो ध्यान नहीं देते किस तरह से ऊंट की तख्लीक की गई। सही सही। वाला वो बोलो, वह इलस्समाई कैफा रुफिअत। और क्या नहीं देखते वो लोग आसमान की तरफ, वो किस तरह से उठाया गया। सही। वह इलल जिबाली कैफी नुसिबत। क्या उन्होंने देखते नहीं पहाड़ों की तरफ किस तरह से उनको फिक्स किया गया। वह इलल अर्दी कैफी सुतिहत। क्या उन्होंने जमीन की तरफ देखते नहीं किस तरह से बिछाई गई। तो ये आपको समझ में आया होगा कि आप अनजाने में अब तक पढ़ते आए, इसका मतलब नहीं समझे थे। तो अगर आप समझेंगे तो आपको आयतों में ये 40% 30% आता है।
सही ठीक है बच्चों, यस तो ये भी सेव कर लो, आपके लिए है। जी तो ये अगर फाला करे तो माँ कोयला हो जाएगा, माँ का मतलब नहीं नहीं। किया गया। ठीक है, ये सब पढ़े थे हमने, तफसील जी भी सर, पढ़े थे। करेक्ट। आप भूल गए, कोई बात नहीं, तो माजी का हो गया हमारा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बच्चिया कोई है क्या? तो देखो, जकरा का मतलब उसे जकर किया, और जुकिरा का मतलब जिक्र किया गया। ये पूरे किया गया। प्रैक्टिस के लिए थे। ये पूरा सेव करो, घर में बैठ के बक बक करो इसके साथ। जी सर। जकरा, जुकिरा, खाला, खीला, नज़ला, नुज़िला, ऐसा पढ़ना है, जोर जोर से चीख चीख के पढ़ो। यस माजी जी, बहुत पूरे कुरान के वर्ड्स है ये। ओके हाँ, इसको पढ़ो जोर जोर से। जी अभी अभी नहीं तो कह, नीचे मीनिंग दिए हुए देखो। देखो, काला उसने कहा, फीला कहा गया हुआ, नज़ला उसने उतारा, नुज़िला उतारा गया हुआ, अंदरा उसने डराया, उन्दिरा डराया गया हुआ, खतना उसने खत्म किया, कुतिला खत्म किया गया, खत्म कुतिबा। ऐसा पढ़ना है इसको। जी और कल अगर किसी के मायने नहीं मालूम तो मेरे को बोलो। यस अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि कैफ हालुकुम या तुल्लाबल कुरान? अल्हम्दुलिल्लाह अना बिल खैर अना बिल खैर, अना बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह नहनु बिखैर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अभी तक का जो ग्रामर पढ़े हमने, या जो ग्रामर अभी तक हमने पढ़े, अगर किसी कुरान की आयत के अंदर या किसी दुआ के अंदर आप लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ हो, आपने उसको नोट करके रखे हो, तो वो आप लोग पूछ सकते, पूछिए। सर ये दूसरा पारा शुरू होता है ना जो जी, तो इसमें सीन क्या है सर? ये के बारे में बताइए। ये सीन जो है फेले मुजारे के साथ इस्तेमाल होता, जैसा हमने पिछले क्लासेस में हमने देखे। अगर काला उसने कहा, इसका फेले मुजारे होता यकूलू, और ये जो आया नसरा से, नसरा उसने मदद किया, यंसुरु वो मदद करता है या वो मदद करेगा। तो फेले मुजारे के साथ बहुत सारे ऐसे अल्फाज, ऐसे हुरूफ का इस्तेमाल किया जाता। जैसा फेले मुजारे के बारे में अगर हम देखेंगे तो फेले मुजारे एक ऐसा फेल है जिसके अंदर 3 जमाने पाए जाते, लेकिन मतलब उसके 3 मायने निकले जाते उसके अंदर। यंसुरु के मायने हैं वो मदद करता है, एक तो हैबिट हो गई, रेगुलर आदत हो गई रोजाना की। दूसरा है वो मदद कर रहा है, यानी कि काम जारी है हाल में। और तीसरे मायने उसके निकलते वो मदद करेगा। तो 3 मायने एक ही सीगे के अंदर, एक ही लफ्ज के अंदर जब निकलते, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, यानी कि उसको अलहदा करने के लिए, कि खास तौर पे मुस्तकबिल बनाने के लिए, उसके अंदर अब हाल का कोई तर्जुमा ना हो, तो उसके लिए कुछ ऐसे हुरूफ का इस्तेमाल किया जाता। और वो हुरूफ 2 है, एक है सीन जबर सा और दूसरा है सौफा। ये दोनों में से एक भी हर्फ अगर मुजारे के शुरू में आ गया तो फिर वो हाल में उसका तर्जुमा नहीं होता, उसका तर्जुमा हो जाता मुस्तकबिल में, यानी कि 2 मायने उसके खत्म हो जाते, सिर्फ 1 मायने उसके बाकी रहते। तो सयकुलु, यकुलु के मायने है वो कहता है, वो कह रहा है, वो कहेगा। ये 3 मायने निकल रहे। लेकिन अगर इसके पहले सीन जबर सा का इस्तेमाल कर दिया जाए, सयकुलु, तो फिर वो कहेगा, सिर्फ मुस्तकबिल में उसके मायने आएंगे, हाल में उसके मायने नहीं निकलेंगे।
تو یہ سین زبر سا اور سوفا یہ دونوں کا استعمال کیا جاتا. سوفا کے معنی ہے ان قریب ہوگا اور سین زبر سا کے معنی ہے ہوگا. ٹھیک ہے, شکریہ. الحمدللہ. جی اور کوئی سوال ہے کسی کو؟ نہیں. سر یہ شام ہونے کی جو دعا ہے امسینا تو ہم نے شام کیا, اسی طرح اسبحنا ہم نے صبح کیا, اس کی جی وجہ سے باقی سینٹینس پہ کوئی اثر نہیں نہ پڑے گا. جیسے ہم با- پڑھتے ہیں ابھی کیا بولے, پھر سے ایک مرتبہ بتائیے آپ. جیسے صبح شام ہونے کی دعا ہے نا, دعا معصورہ امسینا علی, جیسے یہ دعا ہے ہاں امسینا ہاں علی فطرت الاسلام, اس کو ہاں ہم صبح کے لیے پڑھیں گے تو صرف اتنا ہی چینج کرنے پڑے گا نا, اسبحنا امسینا کی جگہ اسبحنا صبح کے لیے. ہاں بس بس وہی چینج کرنا ہے. اور یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے اصل میں. امسینا اور اسبحنا یہ جو ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. جی تو یہ بورڈ پہ لکھا ہوا نظر آ رہا آپ لوگوں کو؟ جی ہو. جی پڑھیے آپ میں سے کوئی. سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بہت اچھے. کیا معنی ہوں گے اس کے؟ اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اس کے بلند حمد کے ساتھ, ہاں بلند ہے اللہ کی ذات, اور نہیں ہے کوئی معبود ساری سوائے ساری اللہ کے, اور اللہ کی ذات بڑی ہے, بلند و بالا و برتر ہے. تیسرا کلمہ تمجید. ہاں سبحان اللہ والحمد للہ. جی والحمدللہ میں الف لام ہے نا. جی الف جی لام ہے. شکریہ شکریہ. الحمدللہ جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحان اللہ والحمد للہ. سبحان اللہ کے معنی ہے پاک ہے اللہ, والحمد للہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ سبحان اللہ پاک ہے اللہ, والحمد للہ واو کے معنی ہے اور, الحمد للہ اور تمام کے تمام تعریفیں ہے اللہ کے لیے. الحمد للہ. اس کے بعد ہے ولا الہ الا اللہ. واو کے معنی ہے پھر سے اور, یعنی کہ حرف عطف, لا نہیں, نہیں الہ کوئی معبود, کوئی معبود, کوئی معبود, ولا الہ نہیں ہے کوئی معبود, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق, اللہ مگر اللہ مگر اللہ, سوائے اللہ اللہ کے. ولا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ اتنا جملہ ولا الہ الا اللہ, آپ میں سے کوئی ایک اس کو ایکسپلین کیجئے, اس کا اجرا کیجئے کہ اس کے ہر لفظ میں کیا کیا ہے, اس کے اندر خاصیت. کون کریں گے؟ عبداللہ, ماجد سر, یا اور لیڈیز میں سے کوئی اور؟ ولا تو مطلب اور, لا مطلب نہیں, ہاں ولا الہ, ولا الہ, الہ مطلب اور کوئی, یعنی میننگ نہیں اس کا, گرامر بولنا ہے کیا؟ ہاں گرامر بولنا ہے, معنی تو بول دیا نا اپن نے. یعنی وہ زبر میں لے کے آ رہا ہو الہ, الہ زبر میں لے کے آ رہا, تو کیوں زبر میں آ رہا؟ ولا بول تو وہ انا کی ٹائپ میں ہے.
ला नफी जिन्स, हाँ लफी ला नफी नफी ला नफी जिन्स है। ला नफी जिन्स जो है एक हर्फ है और ये आमिल हर्फ है। ये अमल ये करता कि अपने बाद आने वाले इस्म को, अपने बाद आने वाले लफ्ज को अखफ कर देता सबसे पहले, जी यानी कि हल्का कर देता, उसके ऊपर से अलिफ लाम भी हटा देता और तनवीन भी हटा देता, तो वो अखफ कर देता। और अखफ करने के साथ साथ उसको एराब के एतबार से उसकी एराबी हालत नसब नसब कर देता। ये दो अमल करता ला नफी जिन्स। और फिर इसके मायने के अंदर ताकीद आ जाती है, यानी कि हर वो चीज जो ला नफी जिन्स के बाद आए तो उसका तमाम के तमाम नाम खत्म हो जाते। तो यहां पे है ला, कैटेगोरिकल, हाँ पूरी जात खत्म कर देता ये ला नफी जिन्स। ला इलाहा, तो ला इलाहा के मायने हैं कि नहीं है कोई भी माबूद। अब माबूद इबादत के लायक, इबादत करने के जैसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं। तो ला इलाहा नहीं है कोई भी माबूद, इल्ला एक्सेप्शन, हरफे इस्तिस्ना सिवाय, अल्लाह अल्लाह के। तो नहीं है कोई भी माबूद सिवाय अल्लाह के। फिर यह है वल्लाहु अकबर। चलिए अब इसके बारे में बताइए। कौन बताएंगे? और अल्लाह बड़ा है और अल्लाह सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है, अकबर मतलब अकबर, अल्लाह अकबर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, बरू सबसे बड़ा है। बुलंद वाला है। सबसे बड़ा है, एकदम आखिर, सबसे आखिरी। इसमें तफसील, सबसे बड़ा, इसको बोलेंगे इसमें तफजील, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, सबसे बड़ा, तफजील, तफजील, हाँ इसमें तफजील। हाँ वल्लाहु अकबरु, और अल्लाह है सबसे बड़ा। तो यह है सुभान अल्लाही, पाक है अल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाही, और तमाम तारीफें हैं अल्लाह के लिए, वला इलाहा इल्लल्लाह, और नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, कोई भी माबूद नहीं है अल्लाह के अलावा। वल्लाहु अकबर, और अल्लाह सबसे बड़ा है। ये वो तस्बीह है, ये याद कर लीजिए, ये तो सबको याद है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको एक मर्तबा रिपीट कीजिए, इसका तर्जुमा जहन में रखिए, इसके मायने जहन में रखिए कि क्या इसके मायने हैं। जब मायने जहन में होंगे तो वो तासीर हमारे पढ़ने के अंदर आएंगी, वो हर लफ्ज की खुशबू महसूस होंगी कि हम हमारे रब की तारीफ बयान कर रहे हैं। ठीक है, तस्बीह में जो अपन पढ़ रहे हैं ना सर, यही है ना तस्बीह? कौन सी? तो तस्बीह में जो हम पढ़ रहे हैं, हाँ सलातु तस्बीह के अंदर यही जो हर रकात में 75 मर्तबा पढ़ना है, तो वो यही तस्बीह है। 75 टाइम्स। तो हाँ। सर अल्लाह अकबर तक पढ़े तो चलेगा या फिर आगे का भी जो बढ़ाना है कि सुभान नहीं, बस यहां तक ही पढ़ना है, अल्लाह अकबर तक पढ़ना है। अल्लाह अकबर पढ़ना इसके आगे जो है वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, वो नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। यहां तक पढ़ना है। जी सर, अल्लाह अकबर। जी, तो हदीस में आता है ये अल्फाज ऐसे है कि 4 रकात नमाज जिसमें हर रकात में 75 मर्तबा ये पढ़ना है, जी तो अल्लाह ताला अगले पिछले गुनाहों को माफ कर देता, बेशक। चाहे वो छुपके किए हुए, चाहे वो खुल्लम खुल्ला किए हुए हैं, चाहे अनजाने में हुए, चाहे जानबूझकर हुए, चाहे तन्हाई में हुए, चाहे मजमे में हुए, चाहे जाहिर में हुए, चाहे बातिन में हो, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ कर देता। पढ़ने का तरीका कैसे सर? हाँ, पढ़ने का तरीका सूरह इसका फातिहा मैं, हाँ सूरह फातिहा सना के बाद 10 मरतबा, फिर सूरह फातिहा और सूरह के बाद 15 मरतबा, और फिर रुकू में 15, फिर रुकू में 10, रुकू से उठने के बाद 10, फिर सजदे में 10,
शुरुआत सर 15 से है, शुरुआत 15 से। ये हाँ जी जी, एक काम करेंगे क्लास के बाद जो है ना इसका चार्ट पूरा आपको भेज देंगे इंशाल्लाह, व्हाट्सएप कर देंगे। 15 सनत हाँ 15 10 फिर 10 10, शुरू में 15 बाद में फिर 10, बाद में 10 10 है। और पूरा मिला के सर, 4 वो- रकात में 300। कई लोग जी। कई तरह से बताते हैं सर। हाफिज साहब हदीस भी भेजो। जी हदीस के साथ भेजेंगे हदीस के इंशाल्लाह। साथ में इंशाल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। हदीस से है या रवायत से सर? हदीस है। हदीस के साथ है ये, और सही हदीस है, सुनन अबी दाऊद की हदीस है। बिल्कुल। सर बहुत सारे लोग कहते हैं ये एकदम ज़ईफ हदीस है। वो हमको उसमें पढ़ना नहीं है। पढ़ना नहीं है। ये तस्बीह आप लोग ध्यान में रखिए, जब भी आप नमाज पढ़ेंगे रोजाना भी पढ़ सकते, इसमें सर हफ्ते में एक मर्तबा जुमा के दिन पढ़ सकते, जी, साल में एक मर्तबा पढ़ सकते। अगर वो नहीं कर सके तो कम से कम जिंदगी में एक मर्तबा ये नमाज पढ़ना ही पढ़ना है। जी जी पढ़ना है। बिल्कुल सही फरमाए। जी जी तो और कोई सवाल है किसी को तो पूछिए। जी सर इसी से रिलेटेड एक दो सवाल है सर, प्लीज इसका जवाब दीजिएगा। जी बोलिए। सर खवातीन में हमारे यहाँ ये रवाज चल पड़ा है इसको जमात से पढ़ने का, है ना? वो मसले मसाइल नहीं पूछना है आपको। अगर ग्रामर के ताल्लुक से कोई सवाल है, नमाज की दुआओं के अंदर अगर कहीं ग्रामर, जो अभी तक के हमने नमाज की दुआएं भी पढ़े उसके अंदर अगर ग्रामर में कुछ बात करना है तो वो सवाल यहां पे पूछिए। आपको अगर इस तरीके से सवाल अगर करना है तो आप नंबर पे, सर के नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर किसी उलमा से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है जी। ये सवालात यहां पे नहीं करना है हमको। ग्रामर से रिलेटेड जो क्लास, जिस मकसद से हम लोग यहां पे जमा हुए, उस मकसद के तहत आप बात कीजिए। बाकी नमाजों की दुआएं भी है, उनमें अंदर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग सवाल कीजिए। सर मैं पूछूं? जी पूछिए। सर नहीं सर एक बार और आपने जो लिखे हैं बोर्ड पे वला इलाहा इल्लल्लाह पर बड़ी मत डाले हैं, तो नमाज में हमको ला को खींच के पढ़ना पड़ेगा सर? हाँ, ला को हमेशा खींच के पढ़ना है। ये ला को हमेशा खींच के पढ़ना है, चाहे आप नमाज में पढ़ो या फिर नमाज के बाहर। ये तजवीद के उसूल है, तो इस वजह से यहाँ पे मद आया, हमजा से पहले मध्य मद आया। मुनफसिल है इसलिए खींच के पढ़ा जाएगा 4-5 अक्षर। जी जी क्या बोले? अभी कल सर जागने की रात है, इस वक्त में इसका फायदा उठा के इंशाल्लाह जो है नमाज में जी जी, आप कभी भी पढ़ सकते, जरूरी नहीं है कि कल ही पढ़ना है, नहीं कभी भी। जिंदगी में एक बार, हर जुमा या हर रोज। जी हाँ, कल क्लास को छुट्टी रहेगी। छुट्टी है क्या? अच्छा जी इसको जब मर्जी हो सकता है आदमी पढ़ सकता है ना सर? कभी भी पढ़ सकते। हाँ कभी भी पढ़ सकते हैं। सर एक तो और एक फायदा सवाल बहुत। पहली रकात में नमाज के अंदर जो हम दुआएं पढ़ते हैं, जिसके अंदर सबसे पहली जो तकबीर पढ़ी जाती वो है अल्लाह अकबर। क्या है? अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद जो तस्बीह पढ़ी जाती है वो है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, यानी कि सना सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, पाक है अल्लाह अपनी तारीफ के साथ, व तबारक अस्मुका, और बहुत बाबरकत है हाँ सुब्हानक अल्लाहुम्मा, पाक है तू ऐ अल्लाह, व तबारक अस्मुका, और बहुत बाबरकत है तेरा नाम, व तआला जद्दुका, और बहुत बुलंद है तेरा मर्तबा, वला इलाहा गैरुक, और नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे। फिर उसके बाद सूरह फातिहा, जद्दो यानी फिर मर्तबा सूरा होता है? मर्तबा होता है, जद के मायने है मर्तबा। अच्छा जी, फिर रुकू में जब जाते, रुकू में जाते वक्त भी फिर तकबीर पढ़ी जाती है अल्लाह अकबर। फिर उसके मायने है अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर रुकू के अंदर जो तस्बीह पढ़ी जाती है वो है सुबहान अल्लाह, सुबहान रब्बियल अजीम। फिर से इस्तेमाल हुआ सुबहाना, पाक है
तू रब्बी अल अजीम, मेरा बुलंद मर्तबे वाला रब रब, रब्बी पाक है मेरा बुलंद मर्तबे वाला रब। फिर जब रुकू से उठ के जो तस्बीह पढ़ी जाती वो है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर इसमें फेल का इस्तेमाल हुआ, समिआ उसने सुना, अल्लाहु अल्लाह ने सुना, लिमन हमिदा जिसने उसकी तारीफ किया। तारीफ की। फिर जवाब में रब्बना लकल हम्द, अरे हमारे रब तेरे लिए ही है तमाम तारीफें, लकल हम्द। फिर अल्लाहु अकबर सजदे के अंदर, फिर सजदे में जो तस्बीह पढ़ी जाती फिर से वो सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा बुलंद मर्तबे वाला रब। फिर इसमें और इसमें क्या फर्क है सर? सुभान रब्बिल अजीम और सुभान रब्बिल आला में वहां पे अजमत वाला है, यहाँ पे मर्तबे वाला है। एक बार फिर बोलो ना मीनिंग। सुबहान रब्बियल अजीम, पाक है मेरा अजमत वाला रब। सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा बुलंद मर्तबे वाला रब। ऑनर, अजीम, अजमत वाला, इज्जत वाला। फिर उसके बाद जब हम रकात हमारी जो कंप्लीट होती, पहली रकात फिर दूसरी रकात, इसी तरीके से सब तस्बीहात सेम। दूसरी रकात में फिर जब कायदे में बैठते तो फिर तशहुद है हमारे पास। नमाज मोमिन की मेराज है, वहां पे है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम तारीफें, तमाम ताजीम, तमाम बड़ाई, तमाम पाकीज़गी, तमाम बरकतें रहमतें अल्लाह के लिए है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलामती हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सलामती हो हम सब पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। फिर गवाही दी जाती अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। फिर उसके बाद दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिम, और फिर दुआ, दुआए मासूरा, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ऐ अल्लाह बेशक मैंने अपने आप पे जुल्म किया, अपनी जान पे जुल्म किया बहुत ज्यादा। वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, कि नहीं माफ करता कोई भी गुनाहों को सिवाय तेरे। फ़ग़फ़िरली, तो तू माफ कर मुझे, मग़फ़िरतम मिन इंदिक, कि मग़फ़िरत है, माफी है तेरे पास। वरहमनी, और रहम कर मुझ पर, इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, यकीनन बेशक तू ही है माफ करने वाला और रहम करने वाला। ये भी दुआ है, और इसके अलावा और भी दुआएं आप लोग पढ़ सकते, जो भी दुआ आप लोगों को आती है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न वासिया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला, जो दुआएं आप लोग पढ़ सकते वो पढ़ना है। जी सर। जी, और कोई सवाल है किसी को तो पूछिए। जी सर, मेरा एक सवाल है सर। जी सर, आप जो पढ़ाते हैं ना, यानी कि इजरा करते वक्त एरा की हालत रफा जी। है, नसब है, जर है, तो उसको हम दूसरे नाम से नहीं पुकार सकते कि जैसे ज़म्मा है, फतह है, कसरा है, इस तरीके से? नहीं, फतहा, जम्मा और कसरा ये जो है ये हरकत को बताते, यानी कि जो हरकत है, अब जैसा हरकत हर जगह हो सकती, वल हम्दु के अंदर वाव के ऊपर जबर है, हा के ऊपर जबर है, और दाल के ऊपर पेश है। फिर उसी तरीके से लाम के नीचे जेर है। तो ये जो जबर, जेर, पेश, ये नाम जो हम इस्तेमाल कर रहे, ये हमारी उर्दू जुबान में ये नाम है। अरबी के अंदर इन्हीं हरकत को, इन्हीं साइंस को कहा जाता फतहा, यानी कि जबर, और जेर को कहा जाता कसरा, और पेश को कहा जाता जम्मा।
تو یہ حرکات کے نام ہے, یہ کہیں بھی آ سکتے. اعراب اس وجہ سے کہا جاتا کہ یہی حرکات کی جو لفظ کے آخری میں لاسٹ لیٹر کے اوپر جو تبدیلی ہوتی, یہ الحمدو بھی ہو سکتا, الحمدی بھی ہو سکتا, اور الحمدہ بھی ہو سکتا. تو یہ جو آخری حرف پر جو تبدیلی آ رہی, اس تبدیلی کو کہیں گے اعراب. باقی یہ ہے فتحہ, کسرہ, ضمہ, یہ ان حرکات کے نام ہیں. یہ تو تجوید میں بولا جاتا ہے نا سر, جزاک اللہ اور سر, سمجھ عمل میں میں آ گیا اچھی طریقے سے. جی الحمدللہ, جزاک اللہ خیرا کثیرا, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. رفع آمین اور وغیرہ. نصب. جی, رفع یعنی کہ پیش, نصب یعنی زبر, اور جر یعنی کہ زیر. اس کو اس میں گرامر میں بولا جاتا ہے, گرامر میں بولا جاتا, رفع, نصب, جر. جی تو چلیے آج یہاں پہ رکیں گے, کل کلاس کو چھٹی رہے گی, اور پھر پرسوں کے دن انشاءاللہ کلاس ہوگی. ٹھیک ہے, جی سر. چلیے دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ سے بھی ہم لوگ کو یاد اور کیجیے. جو آج پڑھایا گیا جی. فعل ماضی مجہول, بھول. اس کی آپ پریکٹس کرنا ہے. جی. کل اور پرسوں 2 دن اس کی پریکٹس کیجئے, کیونکہ یہ پریکٹس ہونے کے بعد یہ جب آپ اچھا آ جائیں گا تو پھر مضارع مجہول پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی انشاءاللہ. جو آنے والی کلاس میں ہم مضارع مجہول پڑھنے والے ہیں. چلیے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کل کی رات وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں یاد رکھنا سر, ہم بھی پڑھانے کے قابل ہو جائے. آمین آمین. اللہ ہم سب کو بہترین قرآن کا معلم بنائے. آمین ہم سب کے پڑھنے پڑھانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اور جتنے معلمین ہیں, جتنے اساتذہ جو ہمارے پہلے گزرے, جو آج ہمارے اساتذہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل کر دے. آمین انشاءاللہ. چلیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام وعلیکم السلام وبرکاتہ. الحمدللہ. سر میری ایک گزارش ہے سر. جی بولیے.